Assalamu alaikum everyone. Let's start May-June 2022, variance 21. The duration of this paper is 1 hour 30 minutes. Let's see what we have in the paper. Choose from the following compounds to answer the questions. Okay. Each compound may be used once, more than once, or not at all. State which compound reacts with dilute nitric acid to form a gas that turns lime water milky. Guys, आप सब जानते हो कि lime water turns milky shows that we are talking about carbon dioxide gas. और आप जानते हो कि carbon dioxide gas is obtained through carbonate. Okay. So whenever any acid react with any carbonate, then always carbon dioxide gas is given off, and that carbon dioxide gas turns lime water milky. Now we need to check कि कौन सा कहाँ पर carbonate ions हैं. We have carbonate ions here, right? So इसका मतलब sodium carbonate is going to be the correct option. All right. Now we can write sodium carbonate. उन्होंने स्टेट करने के लिए कहा है, तो क्योंकि उन्होंने फॉर्मूले दिए हैं तो हम फॉर्मूला ही लिखेंगे, हम नाम नहीं लिखेंगे. Reacts with warm aqueous sodium hydroxide to form a gas that turns damp red litmus paper blue. अब ये जो गैस red litmus paper blue कर रही है, that means it is ammonia gas. All right, because ammonia is the only alkaline gas. So when any ammonium salt react with any alkali, always ammonia gas is given off, which turns damp red litmus paper blue. That's what we have done in the class. It has to be ammonium ions. Let's see what we have. We have ammonium ion in this ये ammonium का salt because it contain ammonium ion. और तो कहीं पर भी नहीं है, right? So हमारा B होगा ammonium chloride. सही है? Now the next is reacts with dilute hydrochloric acid to give a gas that decolorizes acidified potassium magnate 7. Obviously ये जो acidified potassium magnate 7 है आपके पास, ये एक oxidizing agent है, और अगर गैस decolorize कर रहा है इसको, तो इसका मतलब that gas needs to be a reducing agent, क्योंकि अगर oxidizing agent है तो reducing agent reaction करेगा, तो gas must be the reducing agent. तो हमारे पास दो गैसेस हैं रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे, और बल्कि एक गैस है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे. दैट गैस इज कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड गैस. आप जानते हैं व्हेन एनी सल्फाइड आयंस रिएक्ट विद एसिड, देन ऑलवेज सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज गिवन ऑफ, व्हिच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट which decolorizes acidified potassium magnate 7. इसका मतलब मुझे ये चेक करना है कि कौन से ऑप्शन के अंदर सल्फाइड आयंस अवेलेबल हैं. सल्फाइड 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 सल्फाइड, ये पोटेशियम सल्फाइड. तो दैट इज योर आंसर. ओके. is prepared using a precipitation reaction. Precipitation reaction में precipitates बनते हैं, और precipitates usually insoluble salt के होते हैं. Ammonium salt soluble, potassium salt soluble, potassium salt soluble, magnesium nitrate, all nitrates are soluble. ये सोडियम का salt is soluble, सोडियम का salt soluble, सोडियम का salt soluble, zinc sulfate soluble, only barium sulfate is insoluble. So right answer is barium sulfate, because barium sulfate हम हमेशा precipitation reaction से डिटरमिन करते हैं. मैं आपको याद करा दूं, ये रिएक्शन मैंने करवाया है आपको. वैसे तो हर चीज कराई दी है मैंने पेपर में, लेकिन मैंने ये रिएक्शन भी करवाया हुआ है आपको. मैं याद करा देता हूँ कि मैंने क्या करवाया है. बेरियम नाइट्रेट प्लस सोडियम सल्फेट, ये दोनों आप इसमें रिएक्शन करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे बेरियम सल्फेट एंड सोडियम नाइट्रेट में. ओके,
So this is your insoluble salt. It is called precipitation reaction. Contain an ion with a charge of -3. Guys, if you have a charge of -3, इसका मतलब वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा. So element belongs to group 5, gain 3 electron in the last shell. Okay, so answer क्या होगा मेरे पास? 3 electrons, group 5, group 5, group 5, ये भी group 6, ये भी group 6, ये भी group 6, लेकिन ये group 5 का होता है. कोई और that is the answer because इसमें phosphorus जो है वो group 5 का है और ये phosphorus ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज -3 आएगा. ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सोडियम फॉस्फेट. Na3PO4 is used to test for an oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को टेस्ट करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, और मैंने आपको करवाया कि पोटेशियम आयोडाइड को हम यूज करते हैं हमेशा, जिसकी वजह से कलरलेस टू ब्राउन का सोल्यूशन मिलता है. राइट, तो हम यहाँ लिखेंगे पोटेशियम आयोडाइड. ओके, अच्छा आप इसको इस तरह से भी तो देख सकते हैं. ज्यादा बेहतर है कि आप इस तरह से देखें, क्योंकि वो कह रहे हैं एन आइन है, चार्ज ऑफ 3-, तो आप नोट करें यहाँ जो एन आइन है उसके ऊपर -1 चार्ज, 2-, -1, 2-, -1, 2-, 3-, 2-, एंड ऑब्वियसली ये भी -1 होगा. ठीक है, तो चार्ज 3- सिर्फ कहाँ आ रहा है? सोडियम फॉस्फेट में आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर सोडियम फॉस्फेट रख दिया. आप इस तरह से भी कह सकते हैं. दैट्स द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The table shows some information about elements in group 5. Okay, state the electronic configuration for phosphorus. So atomic number of phosphorus जो है वो आपको periodic table से मिल जाएगा. Atomic number of phosphorus is 15, which means it has 15 electrons. तो first shell में कितने होंगे? 2, second shell में कितने होंगे? 8, third shell में कितने होंगे? 5. That's what we have done in the class. Okay. Now the next is explain why it is easier to predict the boiling point of bismuth than to predict its melting point. आप नोट करें, melting point कम था, फिर ज्यादा हुआ, फिर ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ. तो इसका मतलब melting point का कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है, लेकिन boiling point कम था, ज्यादा था, फिर ज्यादा हुआ और फिर बहुत ज्यादा हुआ. तो boiling point का एक फिक्स ट्रेंड है, इसलिए boiling point को प्रेडिक्ट करना easier है as compared to melting point. तो हम यहाँ लिखेंगे from the table above, we can have a proper trend of boiling point. ठीक है, whereas we do not have any trend in the melting point. Okay, and obviously bismuth का जो boiling point है वो 1000 से ज्यादा ही होगा, यानी 1380 से ज्यादा ही होगा. ठीक है, use information from the table to explain why antimony is a liquid at 1000 degrees Celsius. Antimony is a liquid. Antimony is a liquid at 1000 degrees Celsius. So बेटा boiling point, melting point जो है वो 630 है और boiling point 1380 है. इसका मतलब इन दोनों के मिड के अंदर जो है ये लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा, यानी यहाँ पर मेल्ट हो रहा है, यहाँ बॉयल हो रहा है, तो सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और गैस के दरमियान एग्जिस्ट कर रही होगी समवेयर अराउंड
somewhere around 950 or might be 1000 degrees Celsius we can say. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे this is because melting point is below 1000 degrees Celsius, while boiling point is greater than 1000 degrees Celsius. Hence, at 1000 degrees Celsius, it is liquid. ठीक है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल. आप सब पढ़ चुके हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल किसे कहते हैं. डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ओनली. Consist of 2 atoms is diatomic molecule. Draw a dot and cross diagram to show the bonding in nitrogen molecule. एक बात और याद रखिएगा, मैंने पढ़ाया था आपको और मैंने कहा था कि याद रखिएगा ये बात, नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर लिस्ट किया है. इसका मतलब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में. एक बात तो ये याद रखनी है. दूसरी बात ये भी याद रखनी है कि 3 electrons of each element share together. मैंने आपसे कहा था पढ़ाते हुए कि ये कॉन्सेप्ट है और यही पेपर में अप्लाई होगा. नेक्स्ट इज nitrogen belongs to group 5 of the periodic table, which means it has 5 valence electrons. So it has 5 valence electron. तो मुझे ये 3 पॉइंट ध्यान में रख के डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनानी है. ये मैंने सबसे पहले बनाया पहला नाइट्रोजन, ये मैंने बनाया दूसरा नाइट्रोजन. ओके, पहला जो नाइट्रोजन है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. 5, 1, 2, 3, 4, 5. मैंने कहा था ना कि 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एलिमेंट शेयर टुगेदर. तो ये वाला नाइट्रोजन हो गया आपके पास. ये वाला नाइट्रोजन भी है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. 1, 2, 3, 4, 5. और हमने सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन शो करने थे. That's how you can make it. And we have done this diagram in class. Okay. इसके बाद वो कह रहे हैं explain in terms of structure and bonding why nitrogen has a low melting point. So nitrogen का melting point low इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में weak van der Waals forces होती हैं. उन weak van der Waals forces को overcome करने के लिए less amount of energy is required. लेकिन स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग की टर्म में आंसर देना है तो हम आंसर देंगे नाइट्रोजन. और जो मैं आंसर दे रहा हूँ ये भी रजिस्टर में लिखा हुआ है, आपके चेक कर लीजिएगा. हेडिंग बता देता हूँ, सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल की हेडिंग है जिसमें मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन दी है, वहीं से लिख रहा हूँ मैं इंफॉर्मेशन. नाइट्रोजन exhibit covalent bonding. तो गाइस मैंने यहाँ पर बॉन्डिंग हाईलाइट कर दी. and has a simple molecular structure. स्ट्रक्चर भी हाईलाइट हो गया. Also due to weak van der Waals forces, और मैंने वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस को इंटरमोलेकुलर फोर्स भी कहा था. वैन डर वाल्स फोर्सेस की स्पेलिंग का ख्याल रखना है. वैन डर वाल forces, less energy is needed to break this force.
टू ब्रेक दिस फोर्स, ठीक है। बिस्मथ इज अ मेटल, और स्टेट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बिस्मथ। तो भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी हो सकती हैं। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सारे मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैल्येबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मैल्येबल और डक्टाइल, ठीक है। हाँ, तो मैंने तीन बता दिए, तीन में से कोई दो लिख दीजिए। उसके बाद वो कह रहे हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम इन डीएम क्यूब ऑफ 19.92 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। गिव योर आंसर टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड मास ऑफ नाइट्रोजन गिवन है, रूम टेम्परेचर है मेरे पास, ठीक है। और वॉल्यूम कैलकुलेट करवाना चाहते हैं डीएम क्यूब। ओके, नॉट अ बिग डील, इजी है बहुत। हम सबसे पहले क्या करेंगे, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे। इसके लिए हमें मास चाहिए विच इज 19.2 ग्राम। हम इसको डिवाइड कर देंगे नाइट्रोजन के एमआर से विच इज 28। सो अगर मैं 19.2 को डिवाइड करूंगा 28 से, तो बेटा मेरे पास आंसर आएगा 19.2 0.685 0.6857 0.8657 मोल्स, ठीक है। अच्छा, 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है, 24 डीएम क्यूब एट आर टीपी। तो हमारे पास कितना है 0.8657 मोल्स। तो बताइए कितना होगा वॉल्यूम। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 से, तो हमारे पास आ जाएगा 16.457 डीएम क्यूब। और आंसर मुझे टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 16। ओके, that's the end of second question. Let's move on to the third one. Seems like it is related to organic. The diagram shows some reactions of butanol. आप जानते हैं कि butanol एक अल्कोहल है, और इस अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होगा OH। ओके, ओके, A, B and C are different compounds. Identify by name A, B and C. A देखते हैं। Oh my goodness, guys, whenever an alcohol undergoes complete combustion, always carbon dioxide and water is formed. Okay, whenever alcohol undergoes incomplete combustion, always water and carbon monoxide gas is formed, according to my lecture. ठीक है, if alcohol undergoes acidified potassium magnate 7 because of oxidation, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, क्योंकि आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। सही है, तो ये जो एरिया होगा ना CH2OH, ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, बाकी पूरा एज इट इज रहेगा। यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये COOH ये बनेगा, ठीक है। यानी ये पूरा इसमें कन्वर्ट होगा, बाकी ये पूरा का पूरा एज इट इज रहेगा, पीछे कोई चेंजेस नहीं आ रही, ठीक है। अगर मैं इस कंपाउंड को इथेनोइक एसिड से रिएक्शन करवाऊंगा, तो आप जानते हैं एस्टर बनता है और वाटर बनता है, ठीक है। तो जो आपके पास ऑर्गेनिक लिक्विड ई है वो एस्टर होगा, और जो लिक्विड बी है वो आपके पास वाटर होगा। तो लेट्स टॉक अबाउट ए, बी एंड सी। ए क्या है मेरे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। वो नाम पूछे तो हमें नाम देना है, ठीक है।
बी क्या है मेरे पास, वाटर, और सी क्या है मेरे पास, एस्टर, और सी तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ई है, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डी। ओके, यानी हम ये कह रहे थे आपसे उस वक्त, बल्कि हम यहाँ लिख देते हैं आपको, उस वक्त हम ये कह रहे थे आपसे कि ये एज इट इज रहेगा पूरा ग्रुप, सही है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, यानी ये कन्वर्ट हो गया इसमें। बाकी ये नोट करें, ये पूरा ग्रुप एज इट इज है। तो आपसे इसका स्ट्रक्चर पूछना है, इसको उठा के कॉपी कर दीजिए आप यहाँ पर, हम यहाँ कॉपी कर देते हैं। पहले हम लिखते हैं स्ट्रक्चर, और क्योंकि वो हमसे स्ट्रक्चर मांग रहा है, उसने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 COOH, राइट। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, ये तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और 4 कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड ब्यूटेनोइक एसिड। हमने ये भी करवाया आपको क्लास में, ये भी याद होना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर वो क्या है, नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ई। तो भैया अगर मैं इस अल्कोहल को इथेनोइक एसिड से रिएक्शन करवाऊंगा तो एस्टर बनेगा, तो चलो रिएक्शन करवाते हैं। जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है, चलो देखते हैं। देखो, ये है तुम्हारे पास CH3, ये है तुम्हारे पास CH2, देन CH2, देन COOH, ये तुम्हारे पास सॉरी, ये तुम्हारे पास ब्यूटेनॉल हो गया, और इथेनोइक एसिड से तुम रिएक्शन करवा रहे हो, तो CH3COOH, यहाँ से OH जाएगा अकॉर्डिंग टू माई लेक्चर, यहाँ से H, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर, वाटर बन गया। जब स्ट्रक्चर लिखा जाता है पहले एसिड का पार्ट आता है, ये मैंने एसिड का पार्ट लिखा, उसके बाद अल्कोहल का पार्ट आएगा, ये मैं अल्कोहल का पार्ट लिखा। ओके, तो स्ट्रक्चर तो मैंने ये बना के दे दिया आपको, CH3 COO CH2 1 2 3 4। ओके, आपका स्ट्रक्चर हो गया। नाम मैंने समझाया था कि जब स्ट्रक्चर लिखा जाता है पहले एसिड का पार्ट आता है, फिर बाद में अल्कोहल का, लेकिन जब नाम लिखा जाता है तो पहले अल्कोहल का नाम आएगा। तो इस 4 कार्बन एटम को क्या बोलेंगे हम, ब्यूटाइल, और इन 2 कार्बन एटम को क्या बोलेंगे भाई, एथेनोइट। तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूटाइल एथेनोइट। ओके, that's the end of question number 3. Let's move on to the next question. वो कह रहे हैं स्टेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस। तो भाई क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मतलब इसमें 17 प्रोटॉन्स होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसका न्यूक्लियॉन नंबर है 35, तो 35 माइनस 17 बिकम्स 18 न्यूट्रॉन्स होंगे। ओके, तो यहाँ हम लिख देते हैं 18। ऑलराइट, स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस। भाई इसमें है क्लोराइड आइन, प्रोटॉन कितना है 17, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18, क्योंकि -1 चार्ज आ गया, राइट, और न्यूट्रॉन 18 ही रहेंगे। तो यहाँ पर आप कर दीजिए 18 इलेक्ट्रॉन। फिर वो आपसे पूछ रहे हैं कि पोटेशियम इज फुल सिंबल फॉर वन आइसोटोप ऑफ पोटेशियम, सजेस्ट द फुल सिंबल ऑफ अनदर आइसोटोप ऑफ पोटेशियम। बेटा आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप इज बेसिकली elements having same atomic number but different mass number. Same atomic number but different mass number. Okay, so देखो इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है,
और इन दोनों का मास भी सेम है, सही है। तो ये तो नहीं हो सकते, तो एटॉमिक नंबर मैंने सेम रखना है, दैट इज 19, और एटॉमिक मास डिफरेंट कर देना है, तो अगर ये 39 है तो मैं 40 कर देता हूँ, सही है। बट लिखने का स्टाइल यही होगा, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने इस पैटर्न पे लिखा है तो मैं भी इसी पैटर्न पे लिखूंगा, यानी एटॉमिक नंबर यहाँ लिखा जाएगा, मैंने भी यही लिखा है, मास नंबर यहाँ लिखा जाएगा, मैंने भी यहाँ लिखा है मास नंबर। फिर वो कह रहे हैं डिस्क्राइब हाउ अ पोटेशियम आयन इज फॉर्म फ्रॉम पोटेशियम एटम। Potassium is basically a metal and metal loses it. Potassium is basically a metal and it belongs to group 1 of the element of the periodic table, which is why it will lose 1 electron from its valence shell and so it will form obviously K plus ion. ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं कि potassium belongs to group 1, contain 1 valence electron, so it can loses its electron so it can loses its 1 electron actually क्योंकि +1 charge है, my goodness, 1 electron from its last shell. Okay, potassium chloride is an ionic compound. Potassium chloride has a high melting point and high boiling point. Explain why potassium chloride has a high melting point. मैंने कहा था जब भी एग्जामिनर हाई मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पूछे, आंसर हमेशा इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग जाएगा, चाहे वो लिख के क्वेश्चन के अंदर या ना लिख के, तो आंसर आप इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग देंगे। आप जानते हैं कि बॉन्डिंग आयोनिक है ना, क्योंकि उसने कह दिया है आयनिक कंपाउंड है, और स्ट्रक्चर क्या होगा, जितने आयनिक कंपाउंड होते हैं उन सबका जॉइंट क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होता है, तो जॉइंट लैटिस ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो 2 मार्क्स का पार्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें थोड़ा सा डिटेल से आंसर देना होगा, एंड ऑब्वियसली डिटेल से आंसर देने के लिए हम कहेंगे कि पोटेशियम क्लोराइड इट एग्जिबिट ionic bonding and has a giant crystal lattice structure. अब giant crystal lattice structure है तो जाहिर सी बात है strong electrostatic attraction होगी, experiences a strong electrostatic attraction between, my goodness, strong electrostatic attraction between potassium ion and chloride ion. Okay, hence more energy is required to overcome such forces. Okay, predict 2 other physical properties of potassium chloride. क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, ऐसा ही है ना, सॉलिड एट आरटीपी होते हैं, याद आया आपको, फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने करवाई हैं आपको, है ना। एक और भी बताया कि भाई डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में,
जैसे सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व होता है ऐसे पोटेशियम क्लोराइड डिसॉल्व हो जाएगा, राइट। और सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, मोल्टन में करते हैं, ये भी सिखाया आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो याद है ना, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, ये भी इंफॉर्मेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज में दी हुई है, ये दोनों भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक्सप्लेन हुई है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, सॉलिड एट आरटीपी, और दूसरा है डिसॉल्व्स इन वाटर, dissolves in water. That's so bad. My writing really, really bad. Dissolves in water. Okay, that's the end of question number 4. Let's move on to the next question. Okay, iron reacts with the steam and with dilute sulfuric acid. The reaction between iron and steam is reversible. Reversible का मतलब reaction favors in both forward and backward. Reaction moves in both forward and backward direction. ठीक है, रिवर्सिबल के यही मीनिंग थे. Now the most important part of this topic is forward reaction is exothermic. इसका मतलब इसकी जो डेल्टा H की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि जब भी कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती है. तो कह रहे हैं an equilibrium mixture is formed when the reversible reaction happens in a closed system. Okay, यानी dynamic equilibrium आ गया. Sorry. Predict what happens to the amount of hydrogen in the equilibrium mixture if the temperature is increased and the pressure remains constant. Okay. तो अगर प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा हुआ है और टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ. ठीक है ना. Charles law states at constant pressure, if we increase the temperature, volume of gas also increases, right? So amount of hydrogen obviously increase होगा because किसी भी no, since the reaction is exothermic और आप temperature को increase कर रहे हो, then according to Lee-Shuster's principle equilibrium favors towards left hand side, obviously इसका जो amount है वो कम हो जाएगा. ठीक है. And that's a good question. Prediction. Amount of hydrogen decreases और इसका टेम्परेचर का इफेक्ट है, ये भी लिखवाया हमने आपको. तो हम बोलेंगे in an exothermic reaction if temperature increases, reaction favors towards left hand side just to minimize the stress. Oh God, the stress in equilibrium. Okay, I really apologize for my writing, guys. Predict what happens to the amount of hydrogen in the equilibrium mixture if the pressure is increased and the temperature remains constant. Okay, see guys, for effect of pressure we need to consider the moles, right? So here we have 3 moles, here we have 4 moles. Total moles यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 7. Here we have 4 moles. Here we have oh, my bad. First of all,
वी कैन नॉट कंसिडर दिस क्योंकि ये सॉलिड है, वी कैन नॉट कंसिडर दिस क्योंकि ये भी सॉलिड है। ओके, सो सॉलिड सब्सटेंसेस को इफेक्ट ऑफ प्रेशर के लिए डील नहीं करेंगे, सिर्फ गैसियस सब्सटेंसेस को लेंगे। तो यहाँ पर कितने मोल्स हैं? 4, और यहाँ पर भी कितने मोल्स हैं? 4। Since the number of moles on both the side is same, so there will be no effect of increasing pressure, right? So हम यहाँ लिखेंगे amount of hydrogen stays the same क्योंकि इक्विलिब्रियम मूव ही नहीं कर रहा। और रीजन क्या है? Since the number of gaseous molecules are same on both the side, hence there is no shift or change in equilibrium. Okay. Iron reacts with dilute sulfuric acid to make aqueous iron 2 sulfate. Okay, construct ionic equation with the state symbol for this reaction. तो सबसे पहली तो बात ये कि जो मॉलिक्यूलर इक्वेशन है वो लिखते हैं। तो ये आयरन है, इसको हम H2SO4 से रिएक्शन करवा देते हैं, ये कन्वर्ट होगा आयरन 2 सल्फेट में एंड हाइड्रोजन गैस में। अब जो स्पेक्टेटर आयंस आपको नजर आ रहे हैं दैट इज सल्फेट आयंस, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपकी फाइनल इक्वेशन ये होगी आयरन प्लस 2 हाइड्रोजन आयंस। इसको मैं कैसे लिखूंगा? 2 हाइड्रोजन आयंस, क्योंकि एसिड है, तमाम एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, एरो ये हो जाएगा आपके पास Fe2 प्लस, क्योंकि सल्फेट तो कैंसिल हो गया, प्लस H2 गैस। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। Describe a chemical test to confirm that iron 2 sulfate is formed instead of iron 3 sulfate. तो मैं क्या करूंगा? मैं इस सोल्यूशन के अंदर NaOH ऐड करूंगा। जैसे ही NaOH ऐड करूंगा तो ग्रीन प्रेसिपिटेट्स आयरन 2 हाइड्रोक्साइड्स के फॉर्म हो जाएंगे। ओके, इससे पहले कि हम आगे जाएं, एक और चीज, लुक 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 लुक, स्टेट सिंबल्स मांग रहे हैं। इसका मतलब ये सॉलिड, ये आयन है तो एक्वस, ये आयन है तो एक्वस, और ये क्या होगा? गैस। तो हम लिखते हैं ऐड aqueous sodium hydroxide iron 2 ions gives green precipitates of iron 2 hydroxide, जिसका फॉर्मूला है FeOH taken 2, that is iron 2 hydroxide. Okay, I hope it makes sense to you. The aqueous iron 2 sulfate form is crystallized to make hydrated iron 2 sulfate FeSO4.7H2 हो, और आप जानते हैं कि ये जो 7H2O है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वैल्यू 7 है। ओके, तो कह रहे हैं कैलकुलेट द रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ हाइड्रेटेड आयरन 2 सल्फेट। ये है जनाब आपके पास FeSO4.7H2O, इसका MR निकालना है। रिलेटिव फॉर्मूला मास मींस MR का निकालना। आयरन पीरियोडिक टेबल में चलते हैं, कितना है हमारे पास? पीरियोडिक टेबल है या आयरन? आयरन हमारे पास है 56 है आयरन हमारे पास। ओके, तो आयरन हमारे पास 56 हो गया, सल्फर हमारे पास 32 है,
ऑक्सीजन हमारे पास 16 है, इंटू 4 करेंगे क्योंकि 4 एटम्स हैं, डॉट की जगह पे प्लस, 7 एज इट इज। वाटर का MR 18 होता है। इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई और ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 278। मैं यहाँ लिख देता हूँ 278। ओके, a student uses 2.80 gram of iron, यानी mass of iron given है, to make 12.5 gram of hydrated iron to sulfate crystal। यानी ये आपको मुझे लगता है प्रैक्टिकल यील्ड गिवन है, राइट? ओ दैट्स कूल, ठीक है ना? 12.5 इज द प्रैक्टिकल यील्ड। The yield is 90%. Calculate the mass of hydrated iron to sulfate crystal made from 2.80 gram of iron if the yield is 100%. Okay. Okay. अच्छा, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले मोल्स ऑफ आयरन डिटरमिन करते हैं। 2.80 को डिवाइड कर देते हैं 56 से, तो मोल्स आ जाएंगे हमारे पास। तो मोल्स कितने आ जाएंगे? 2.80 डिवाइडेड बाय 56 इज गोइंग टू बी 0.05 मोल्स। ठीक है, जो मोल्स इसके हैं एग्जैक्टली वही मोल्स हाइड्रेटेड सॉल्ट के होंगे क्योंकि V1:1 का रेशियो है। तो मास ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट कितना हो जाएगा, या हाइड्रेटेड क्रिस्टल कितना हो जाएगा? 278 इंटू 0.05 इंटू 278, तो ये हो जाएगा 13.9 ग्राम। ओके, ये मेरा आंसर हो गया 13.9 ग्राम। और वो कह रहा है कि ये जो है ये 100% यील्ड है। ओके, now the next is aqueous iron to sulfate is electrolyzed using graphite electrodes। याद रखिएगा ये जो ग्रेफाइट होते हैं ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। सही है। वो कह रहे हैं प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, आयरन टू सल्फेट कह रहा है। तो भाई मेरे पास आयरन टू आयंस भी हैं और हाइड्रोजन आयंस भी हैं वाटर से। यहाँ से सल्फेट है और यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन है। मैंने तो आपको सिखाया हुआ है, मैंने आपको ये सिखाया था कि भाई हाइड्रोजन आयन जो है वो क्लोजर टू द लाइन ऑफ डिस्चार्ज है, इसलिए हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगे एट कैथोड। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयंस क्लोजर टू द लाइन ऑफ डिस्चार्ज हैं, इसलिए ऑक्सीजन गैस फॉर्म करेंगे एट एनोड। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन इलेक्ट्रोलिसिस इन डिटेल, राइट? तो प्रोडक्ट एट कैथोड क्या हो जाएगी मेरे पास? हाइड्रोजन गैस। और प्रोडक्ट एट एनोड क्या हो जाएगी मेरे पास? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, now the next is iron is extracted from iron ore in the blast furnace। भाई जो आयरन ओर है उसका नाम है हेमाटाइट ओर। तो आयरन जो है वो हेमाटाइट ओर से एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, describe the essential reactions involved in the extraction of iron। 3 मार्क्स का पार्ट है। मैंने आपको 4 स्टेप्स करवाए, वो चारों लिख लीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या था? एक कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप में क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड वापस कार्बन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। फिर थर्ड रिएक्शन क्या था? वेट, सेकंड रिएक्शन था
जो मैंने करवाया क्लास में वो कर देते हैं। मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया था कैल्शियम ऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर हमने कहा था कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हुई है स्टेप 1 और स्टेप 2 में, ये फर्दर कोक के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में, राइट। फिर ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये हेमाटाइट ओर में मौजूद होता है आयरन 3 ऑक्साइड विच इज फॉर्मूला ऑफ Fe2O3। ये इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा 2Fe प्लस 3CO2 में। ये मैंने इक्वेशंस लिख दी हैं। अगर आपको इक्वेशंस याद है इक्वेशंस लिखने नहीं तो वर्डिंग्स लिख दीजिए, ठीक है। वर्डिंग्स कैसे होगी? कार्बन reacts with oxygen to give कार्बन डाइऑक्साइड, सही है। फिर लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस into calcium oxide and carbon dioxide. Coke and carbon dioxide react together to give कार्बन मोनोऑक्साइड। अब फिर हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे आयरन 3 ऑक्साइड reacts with carbon monoxide to give iron। अच्छा, क्योंकि 3 मार्क्स का और मुझे मार्किंग से नहीं पता, मैं अपना आंसर पूरा दूंगा। हमने याद करें, हमने एक और भी बात बोली थी। हमने ये भी कहा था कि भाई मोल्टन स्लैग बनता है और मोल्टन स्लैग बनने के लिए क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड दोनों आपस में रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट बना लेते हैं एंड दैट्स योर मोल्टन स्लैग। ठीक है, दैट्स हाउ वी कैन रिमूव द इम्प्योरिटीज। दैट्स द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। वो कह रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड are pollutants formed in a car engine. Describe how nitrogen monoxide formed in the car engine. भाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं, so reaction occur between nitrogen and oxygen। फिर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एज शोन इन द इक्वेशन। ये इक्वेशन हमने दी हुई है, आपको पढ़ाया हुआ है। द रिएक्शन इज एक्सट्रीमली स्लो एट रूम टेम्परेचर but is much faster in the presence of catalyst and catalytic converter. Explain why this reaction involves both oxidation and reduction. तो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करके, ऑक्सीजन गेन करके, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन गेन करके। तो आप बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड gains oxygen, ठीक है, whereas nitrogen monoxide loses oxygen। So gain of oxygen क्या होता है? Is oxidation and loss of oxygen क्या होता है? Is reduction। इसलिए इस रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक साथ हो रही है, ठीक है। Now the next is the reaction between carbon monoxide and nitrogen monoxide is exothermic. That's very important. अगर exothermic है तो इसका मतलब डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, ठीक है। Explain using ideas about the bond breaking and bond forming why the reaction is exothermic। तो मैंने आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिखवाया है। मैंने स्टेटमेंट ये लिखा है कि bond breaking absorbs energy
and bond making, या bond formation releases energy. Okay. Energy absorbs energy and bond formation releases energy. क्योंकि एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब more energy is released than absorbed, hence reaction is exothermic. Okay. Explain using ideas about particles why increasing the temperature increases the rate of reaction between carbon monoxide and nitrogen monoxide. सबसे पहली बात, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है. जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी यानी सक्सेसफुल कोलिजन इंक्रीज होते हैं एंड एज अ रिजल्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है. सही है. So for 2 marks you need to write few points here. Temperature increases kinetic energy increases, particles move faster, collision frequency increases, collision frequency मैंने बताया था पढ़ाते हुए, number of collisions in a unit time. सही है. So rate of reaction increases. Okay, क्योंकि वो हमसे rate of reaction पूछ रहे थे. Let's move on to the next part of the question. Explain why catalyst increases the rate of reaction between carbon monoxide and nitrogen monoxide. By catalyst lowers the activation energy. Catalyst lowers the activation energy by providing an alternative path. By providing an alternative pathway. Okay. Next, explain using ideas about particles why the catalyst in a catalytic converter needs to have a large surface area. Surface area जितना ज़्यादा large होता है, जाहिर सी बात है जो particles हैं वो ज़्यादा contact में आते हैं आपस में, जिसकी वजह से collision frequency बढ़ती है, rate of reaction बढ़ता है. Okay. So हम यहाँ बताएंगे having a large surface area increases the number of reacting particles these particles can contact more with each other, thus collision frequency increases and so rate of reaction increases. So rate of reaction increases. Okay. Let's move on to the question number 7. Aluminum is an element in group 3 of the periodic table. Aluminum is used to make containers for food because it does not react with water. State and explain in terms of its properties
one other than large scale use of aluminum. Large scale use, भाई large scale use तो एरोप्लेन भी बनाए जाते हैं, है ना? एरोप्लेन, ठीक है। इसके अलावा ट्रेन्स भी बनाई जाती हैं, क्योंकि लाइटर होता है ना, तो फ्यूल कंजम्पशन कम होती है। एक्सप्लेनेशन। अच्छा, एक और भी है, आप नोट करें, हमारे कराची के अंदर जो है जितने भी ओवरहेड केबल्स हैं वो सारे के सारे एल्यूमिनियम के हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल केबल्स, सही है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनकी डेंसिटी कम होती है, बिकॉज एल्यूमिनियम हैज अ लोअर डेंसिटी। एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर एक थिक ऑक्साइड लेयर होती है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव थिक ऑक्साइड लेयर, water cannot interact with aluminum, hence reaction cannot take place, hence reaction cannot take place। अच्छा, वाटर क्यों नहीं इंटरेक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम से? क्योंकि ये जो थिक ऑक्साइड लेयर है ये उसको इंटरेक्ट नहीं करने दे रही, यानी ये वाटर को, ये थिक ऑक्साइड लेयर जो है ये इम्परमिएबल लेयर है, बेसिकली ये वाटर को पास नहीं होने देती, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। Describe with the aid of a label diagram the metallic bonding in solid aluminum. Okay, that's what we have done a couple of days ago. दोबारा से कर लेते हैं। दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव आपस में कभी भी इंटरेक्ट नहीं होंगे, मैंने पहले भी समझाई थी बात, आज फिर बोल रहा हूँ। ये आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे? पॉजिटिवली चार्ज आयन, और ऑब्वियसली इन पॉजिटिवली चार्ज आयन के दरमियान क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गए आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वो लेबल डायग्राम कह रहे हैं हमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर लिखेंगे पॉजिटिवली चार्ज आयन, ठीक है, और ये लिखेंगे फ्री डी फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन या डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन या डी लोकलाइज्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वो कह रहे हैं डिस्क्राइब, ये तो मैंने लेबल डायग्राम कर दी, अब डिस्क्राइब भी करने के लिए कह रहे हैं, तो डिस्क्राइब क्या करेंगे हम? डिस्क्राइब कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग electrostatic attraction exists between positive ion and C of delocalized electron. Okay. Thus,
atoms are closely packed together. Atoms of metals are tightly packed together. Tightly, closely packed together. ठीक है? Now the next is aluminum is manufactured by the electrolysis of aluminum oxide dissolved in molten cryolite. Write the ionic equations for the reaction at cathode and anode. अगर आपको याद हो, एनोड पे एल्यूमिनम आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, 3+ चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा एल्यूमिनम में। स्टेट सिंबल्स नहीं मांग रहे इसलिए नहीं दे रहे। एनोड पे ऑक्साइड आयंस जो हैं वो ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन एटम और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर O2 और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज a sample of 2.30 gram of 2.34 gram of aluminum is reacted with 50 cm cube of 2 mole per dm cube sulfuric acid. Show by calculation that the aluminum is in excess in this reaction. Okay, तो भाई मेरे पास मोल्स हैं और मेरे पास मास है, तो मैं सबसे पहले मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो मेरे पास 2.34 ग्राम है, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 27 से। तो अगर मैं इसको 27 से डिवाइड करूंगा, 2.34 divided by 27, so it's going to be 0.086666 moles। ठीक है, वो 66 आगे तक जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली मुझे कंसंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है, तो मैं मोल्स कैलकुलेट करूंगा H2SO4 के, तो 1000 cm³ contain 2.00 moles of H2SO4। we have 50.0 cm³, सो बताइए मोल्स कितना है। ये हो जाएगा आपके पास 50.0 into 2.00 divided by 1000, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास मोल्स 0.100 मोल्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इतने मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद इतने मोल्स ऑफ H2SO4। सही है, तो इसका मतलब H2SO4 हैज टू बी इन एक्सेस। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 0.100 मोल्स ऑफ H2SO4 can react with okay 0.0867 moles of no, what I'm doing, wait, let me think ओके मेक सेंस। देखो मेरी बात गौर से सुनो, बहुत गौर से, एक स्टेटमेंट देना है मैंने, इसलिए गौर से सुनना। तुम्हारे पास एल्यूमिनियम के मोल्स कितने हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 2, और ये कितना है 1 है ना, ओ सॉरी 3 है। ठीक है, ये 2 मोल है, ये 3 मोल है। तुमने 0.08666 कैलकुलेट किया, तो बताओ ये कितने होंगे। तो यहाँ से मोल्स
ऑफ H2SO4 तुम्हारे पास आ रहे हैं 0.13। इसका मतलब अगर तुम इतने मोल्स ले रहे हो एल्यूमिनियम के रिएक्शन करने के लिए तो तुम्हें इतने मोल्स ऑफ एसिड चाहिए। ठीक है, तो हम ये स्टेटमेंट लिख देते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं कि 0.13 मोल्स ऑफ एसिड, एसिड नहीं H2SO4 is needed to react with 0. Guys, hold on a second. नहीं, अच्छा फ्रेम नहीं हुआ हुआ, तमीज से फ्रेम कर लेते हैं। हम कह देते हैं कि 0.0866 moles of aluminum required to react with 0.13 moles of H2SO4. That makes sense. Okay. Now the next question is alkene are homologous series of unsaturated hydrocarbon. Unsaturated किसे कहते हैं? Unsaturated का मतलब होता है contain double bond between carbon. ठीक है, name the alkene which has only 3 carbon atoms in the molecule. Propene, 3 carbon atom की alkene is propene. तो वो नेम पूछ रहे हैं तो मैं नेम दूंगा। ठीक है, उन्होंने नेम कहा है मुझसे। Draw the structure of the unbranched and branched alkene. Show all of the atoms and all of the bonds in each structure. Unbranched alkene, unbranched alkene क्या होगी? Propene. 1 2 3 डबल बॉन्ड आ गया, हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई करो। ये अनब्रांच्ड एल्कीन है। ओके, और ब्रांच्ड एल्कीन मैंने आपको क्लास में ये करवाया 1 2 3, और यहां मैंने एक CH3 लिखवाया था आपको। इसको हमने कहा था 2 मिथाइल प्रोपीन, इफ यू रिमेम्बर। आइसोमर बनाया था हमने ब्यूटीन का, राइट। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब अ केमिकल टेस्ट दैट डिस्टिंग्विश एन एल्कीन फ्रॉम एन एल्केन। तो मैं एक्वस ब्रोमीन यूज करूंगा। यूज एक्वस ब्रोमीन, एल्केन के साथ नो रिएक्शन, और एल्कीन के साथ ब्रोमीन डीक्लोराइजेस, लेकिन मैं डीक्लोराइजेस नहीं लिखूंगा। मैंने कहा था कि आप लिखोगे रेड ब्राउन टू कलरलेस। ठीक है, नेक्स्ट इज alkene are manufactured by cracking of long chain hydrocarbons. The equation for cracking of C14H30 is shown. That's what we have done in the class. और यही एग्जाम्पल भी दी हुई है मैंने। Give 2 reasons why cracking of long chain hydrocarbon is important. भाई long chain hydrocarbon से जो है वो shorter chain और useful hydrocarbons आते हैं। ठीक है, जो सप्लाई और डिमांड को मीट करते हैं। long chain hydrocarbons is converted into and more useful hydrocarbon. Also, this produces hydrogen, which uses as a fuel. सही है, तो हाइड्रोजन भी तो प्रोड्यूस करते हैं ना।
राइट। वो कह रहे हैं कंपाउंड एक्स कंटेन 85.7% कार्बन, 14.3% हाइड्रोजन बाय मास, कैलकुलेट यूजिंग द परसेंटेज कॉम्पोजिशन डेटा, empirical formula of x, show your working, state the molecular formula of x. okay, तो कार्बन मेरे पास है 85.7, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 12 से, ओके, और हाइड्रोजन है मेरे पास 14.3, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 1 से। तो 85.7 divided by 12 is going to be 7.14, और ये हो जाएगा 14.3। 7.14 को दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं टू गेट द सिंपलेस्ट रेशियो। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, इसका मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला जाएगा CH2। ओके, ओके, CH2। अच्छा, अब देखो, इसमें से ये रिमूव हो गया, यानी हम ये कह रहे हैं कि C14H13 में से C8H18 रिमूव हो गया, तो बच कितना जाएगा भाई? ये हो जाएगा 6 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 12 हाइड्रोजन। तो 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और इसके 2 मोल्स हैं, राइट। तो इसके 2 मोल्स उसी वक्त होंगे जब ये C3H6 होगा, ये बेसिकली C3H6 है, सही है, क्योंकि ये 2 मोल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? C3H6 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ये जो 2 मोल्स बने हैं ये C3H6 के हैं, जब भी तो वो डबल होकर आ रहे हैं यहाँ पर मेरे पास। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास ये फ्रेगमेंट आ गया, तो ऑब्वियसली X होगा, बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो फ्रेगमेंट आया है ये 2 मोल्स के लिए आया है, तो 1 मोल का क्या होगा? C3H6, और जो 1 मोल का C3H6 है वो तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट, अमोनिया is used to make nitrogenous fertilizers. Ammonia is manufactured using the reversible reaction between nitrogen and hydrogen. Construct the equation for this reversible reaction. That's an easy task. ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, दोनों मिलकर बना रहे हैं अमोनिया। Ammonia is used to make soluble salt, ammonium nitrate. Name the acid that reacts with ammonia to make ammonium nitrate. Obviously nitric acid, क्योंकि वो नाम मांग रहे हैं तो हम फॉर्मूला नहीं दे सकते, ठीक है, नाम मांग रहे हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन एंड अमोनियम नाइट्रेट। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास। सबसे पहला काम, MR ऑफ अमोनियम नाइट्रेट निकालो, एंड दैट इज गोइंग टू बी 80। AR ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है? 14। इस फॉर्मूले में एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं मेरे पास? 2। तो ये हो जाएगा बेटा परसेंटेज मेरे पास 14 times 2 divided by 80 into 100। सो बेटा मेरे पास आंसर आ जाएगा 35%। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 35%। ओके, ये क्लास में भी किया हमने। फिर वो कह रहे हैं नाइट्रोजन fertilizers such as ammonium nitrate leach from farmland and cause water pollution problem in rivers and lakes. Name the process. Eutrophication. ओके, उसके बाद वो कह रहे हैं आपसे explain why this type of water pollution problems is increased when nitrate fertilizers are used instead of other fertilizers. भाई नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो बाकी फर्टिलाइजर से ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए इंक्रीज होती है बिकॉज ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। ठीक है, तो अब लिख दीजिए बिकॉज नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स आर वेरी सॉल्युबल इन वाटर, इसलिए प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होती है। आर वेरी सॉल्युबल
in water. Next is a farmer adds ammonium nitrate to soil. The farmer then adds calcium hydroxide to the soil. आप जानते हैं एसिडिक अमोनियम सॉल्ट जो है वो एसिडिक होते हैं, ये एल्कली हैं, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए ऐड करें तो स्टेट द पर्पस ऑफ एडिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू सॉइल, तो हम लिखेंगे टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ द सॉइल, एसिडिटी ऑफ द सॉइल, तो हम बताएंगे कि ये एसिडिक होता है, ठीक है। कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन अमोनियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, using your equation explain why ammonium nitrate fertilizer is less effective after calcium hydroxide is added. So ये बहुत आसान सी इक्वेशन है, हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है, इसको हम रिएक्शन करवाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, सो हमें कैल्शियम नाइट्रेट मिलेगा, वाटर मिलेगा ऑब्वियसली, और अमोनिया गैस रिलीज होगी। कैसे पता है? क्योंकि मैंने बताया आपको कि when any ammonium salt react with any alkali, always ammonia gas is formed along with salt and water, ठीक है। अच्छा, लेस इफेक्टिव क्यों है, ये बात बहुत अहम है, लेस इफेक्टिव क्यों है आफ्टर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड, क्योंकि अमोनिया रिलीज हो चुकी होती है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे अमोनिया इज फॉर्म, अमोनिया खुद एक एल्कली है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इतना ज्यादा फिर इंपॉर्टेंट नहीं रहता, इफेक्टिव रोल प्ले नहीं करता। अमोनिया इज फॉर्म which is also alkaline. Okay, that's the end of this paper.